अस्सलाम वालेकुम। जलालपुर HD TV की तरफ से रहीम यार खान की तरफ हमारा सफ़र जारी है। मैं मोहम्मद ज़फ़र शाह बुखारी और सैयद यासिर शाह बुखारी के साथ हम इस वक्त रहीम यार खान की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम रियासत भावलपुर के एक कदीम तारीख़ी आसार पतन मीनार की तरफ जाएंगे, जहां पर हम आपको इसके बारे में मुकम्मल तारीख़ी आगाही फराहम करेंगे। Assalamu alaikum, you are watching Jalalpur HD TV. Syed Muhammad Zafar Bukhari and Syed Yazir Bukhari are currently in Rahim Yar Khan with the history of ancient sites of Pakistan and will tell you about a sample of ancient architecture of Patan Munara. Patan Munara, forgotten Buddhist monastery. Archaeologists believe the structure was built by Alexander the Great during his military expedition to India. The ruins of Patan Munara, situated 8 kilometers from Rahim Yar Khan, are believed to be a 5,000-year-old Buddhist monastery of which only a single burnt sienna column remains today. Very little is known about the structure, but the general consensus is that it was built during the Hakra Valley civilization of the Mauryan period 250 BC. The Manara is named after Patanpur, which is said to have once been a lush city nestled on the bank of the river Gagra, an offshoot of the river Indus. Patan Manara thus means tower on the ford. The structure has a single doorway facing west. There appears to be no way to reach the top floor. At some point in time, the Manara is said to have been used as a watchtower. Some archaeologists believe the structure was built by Alexander the Great when he passed through this area during his military expedition to India. As was his practice, Alexander set up a cantonment here under a Greek governor, and tower served for keeping a watchful eye on the local tribes. There is a mystery behind it that there was once treasure hidden in that historical building. By the 18th century, when Patan Manara was demolished, they discovered a brick with Sanskrit written on it. Nearly a century and a half ago, a political agent of the former state of Bahawalpur called Colonel Minchin is said to have set out to explore the ruins of Patan Manara. He passed an order to excavate the place, but during the process of digging, the workers came across a swarm of flies whose sting killed them on the spot. Due to this event, he had to abandon exploration. In the absence of any scientific investigation, the Gazetteer of Bahawalpur State, 1904, is the only source of information on Patan Manara. पतन मुनारा या पतनपुर रहीम यार खान से 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और जलालपुर से इसका फासला 187 किलोमीटर बनता है। ये दरिया सिंध की एक पुरानी गुजरगाह पर वाक़ था, जिसे मकामी लोग सेज कहते हैं। ये रियासत भावलपुर का वसी तरीन कदीम आसारों में से एक आसार है। कदीम फ़न तामीर का वहद नमूना दरमियान में खड़ा एक मीनार है, जिसे पतन मीनारा कहते हैं। कहा जाता है इसके इर्द गिर्द 4 मीनार एक बूढ़ी आश्रम का पता देते हैं। पहली मंजिल पर मरकज़ी मीनार से मिले हुए 4 मीनार 18वीं सदी के आगाज़ तक मखदूश हालत में मौजूद थे। तब फजल अली खां बालानी ने इन्हें मिसमार किया और ईंटियों पत्थर दीनगढ़, साहबगढ़ और भागला की नई फसीलें बनाने में इस्तेमाल किए। इस वक्त सिर्फ एक मीनार बाकी है, जो आप देख सकते हैं। रिवायात कहती हैं कि इसकी 3 मंजिलें हुआ करती थीं। कोई नहीं कह सकता कि बालाई मंजिलें कब गिर गईं, लेकिन दूसरी मंजिल बहादुर खां बालानी ने 1740 में मिसमार की थी। एक ईंट दरियाफ्त हुई थी जिस पर संस्कृत में एक इबारत कुनंदा थी। इससे पता चलता है कि आश्रम सिकंदर आज़म के ज़माने में तामीर किया गया था। कर्नल मिंचन ने मीनार के करीब आसार की खुदाई 1870 में करवाई, मगर कुछ हासिल न हुआ। खुदाई के दौरान मजदूरों को एक बदबूदार सियाल सा मादा मिला, जिस पर बड़े साइज और अनोखे रंग की मक्खियाँ भिन भिना रही थीं। मोहलिक बू और मक्खियों के जहरीले डंक ने कई मजदूरों की जान ले ली और यूं ये खुदाई ख़त्म करनी पड़ी। आसार कदीमा कई मील पर मुहित हैं और तब के बाद इनकी खुदाई के लिए कोई कोशिश नहीं की गई।
जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं इसका असल नाम किसी को भी मालूम नहीं और ना ही किसी मुस्लिम मौरख के यहाँ पतन का कोई जिक्र मिलता है। चुनांचे लगता है कि ये अन की आमद से काफ़ी पहले आबाद और वीरान हो चुका होगा। दर हकीकत पतन गालिबन एक जदीद नाम है, लेकिन हम कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इसे ये नाम कब दिया गया। मोहतरम नाज़रीन, आइए अब हम आपको पतन के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करते हैं। पतन को पतनपुर भी कहा जाता था, जैसे कि अहद अकबरी की कुछ सनदों में ज़िक्र है, लेकिन आइन अकबरी में कहीं भी इसका ज़िक्र एक मकाम के तौर पर नहीं आया, मासिवाय सरकार सेविस्तान के, जो यही पतन हो सकता है और नहीं भी। दूसरी रिवायत यह है कि महमूद गजनवी सोमनाथ जाते हुए पतन से गुजरा। वहाँ से हाकड़ा की एक शाख जो इन दिनों बहाव की हालत में थी के रास्ते जनूब मगरिब की तरफ गया और उसके घुड़सवार इतने ज़्यादा थे कि अगले घोड़े घास चरने के काबिल थे, लेकिन पीछे वालों को सिर्फ अगले घोड़ों की लीद पर ही गुजारा करना पड़ता था। इसी तरह पतन के बारे में एक और रिवायत हम आपको बताते हैं। सिंध, बीकानेर और जैसलमेर के हिंदू राजे और सरदार 18वीं सदी के आगाज़ तक मीनार की ज़ियारत करने जाते और वहाँ माघ के महीने में एक सालाना मेला शिवरात्रि लगा करता था। इस ज़माने में दरिया सिंध का इजाफी पानी सेज में आ जाता था और पतन एक पुरकशिश मकाम था। 7 कमरों पर मुश्तमिल एक ज़ेर ज़मीन इमारत थी जिसके वस्त में 2 तालाब होते थे। त्यौहार के दौरान एक तालाब पानी और दूसरा दूध से भर दिया जाता था। बाबा रत्ता या हाजी रत्ता ज़ायरीन को मुकद्दस दूध और पानी पिलाया करता था। नवाब मोहम्मद बहावल खां सोम के दौर में तकरीबन 1840 ओगर ज़ात का एक जोगी इस मुकद्दस इमारत का मोहतमिम था। कहा जाता है कि उसने ज़ेर ज़मीन कमरे के करीब खुद को नमक के ढेर में दफन करवा दिया था। जोगी के मुरीद ने पुराने दस्तूर छोड़ दिए और मढ़ी में एक लिंग नस्ब करवा दिया। औलाद की ख्वाहिशमंद बांझ हिंदू औरतें इस लिंग के पास आया करती थीं। लिंग पूजा इस कदर मकबूल हो गई कि मुसलमान औरतें भी मढ़ी की ज़ियारत पर आने लगीं। ये देखकर यहाँ के मुसलमान बहुत गज़बनाक हुए और इमारत को मिसमार करवा कर इसकी जगह मस्जिद तामीर करवाई। ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये उसी मढ़ी की जगह पर बनाई गई है। पतन के बारे में यहाँ पर एक कहावत भी मशहूर है, जैसा कि पतन गर्क थिया उहो विच भी ना है, यानी पतन की तबाही का सबब बनने वाली औरत जिसकी खातिर से तबाह किया गया था वो यहाँ मौजूद ही नहीं थी। इस कहावत के माखज़ के मुतल्लिक़ कोई भी वजाहत नहीं मिलती। इसी तरह यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल मिंचन का कहना है, इमारत की अंदरूनी दीवारों से प्लस्तर हटाने पर मुझे सिंधी हरूफ तहजी में इबारत नज़र आई जो 1559 और 1569 के दरमियान यहाँ पेश किए गए किसी चढ़ावे का बयान साबित हुई। उनमें से एक मतलब यूँ था, मैंने मन्नत मानी है कि मुनाफे में से निस्फ आना फ़ी रुपया नज़र करूँगा। इस वक्त ये इमारत, ये मीनार एक आसार कदीमा के तौर पर यहाँ पर खड़ा हुआ है और अपनी तारीख़ बयान कर रहा है। मोहतरम नाज़रीन, सैयद ज़फ़र बुखारी और सैयद यासिर बुखारी को इजाज़त दीजिए एक अगले पड़ाव की तरफ। इंशाअल्लाह हम आपको एक नए प्रोग्राम की तरफ लेकर जाएंगे।